Hello students, so we are back again with chapter 16 probability. We are talking about certain questions from miscellaneous exercise. We'll talk about question number 7, which says A and B are two events such that PA is equals to 0.54. The probability of event A is given to us as 0.54. Probability of B is given to us as 0.69 and probability of A intersection B is given to us as 0.35. So as we can see, I have told you earlier also that A intersection B probability will definitely be less than individual probabilities of A and B. So 0.35 की वैल्यू 0.54 और 0.69 दोनों से कम है. In the first part we have to find probability of A union B. और जब भी हमसे यूनियन यानी और की बात की जाएगी, अपने पास फॉर्मूला है PA plus PB minus PA intersection B. We can put the values and solve for this. Second part of this question is probability of A dash intersection B dash. As I have told you, A dash intersection B dash, as per De Morgan theorem, it is A union B का whole dash, and dash of an event is always 1 minus that event. So 1 minus A union B. A union B हमें first part से मिल जाएगा. So we'll be solving that. Okay. Now part 3 and 4. These two parts are very important. A intersection B dash. As I've told you, A intersection B dash इसका मतलब only A भी होता है. ऐसा हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ रखा है. Only A, and it can be represented as probability of A minus probability of A intersection B. We have both the values given to us, so we can solve them. I am not solving the questions, I am just giving you the hint so that you can solve these questions. And the final part is B intersection A dash or A dash intersection B. It basically means it is asking us about the probability of only B, and it means B में से A intersection B हटा दीजिए. So we know both the values, we can solve them and we will get the answers. ठीक है, यानी कि जिस पे डैश लग रहा है या जिस पर डैश नहीं लग रहा है उसमें से दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाए. So I hope you will be able to solve this. All the questions, all the parts of this particular question. Now coming to question number 9, which has been asked. If a 4-digit number which is greater than 5000 is randomly made from or formed from digits 0, 1, 3, 5, 7, इससे 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं. What is the probability that it is divisible by 5? When digits are repeated, when digits are not repeated. तो अपन पहले सेकंड पार्ट करते हैं, digits not repeated. करेक्ट. पहले ये कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट करेंगे. डन. So when digits are not repeated, numbers, 4-digit numbers, ठीक है, ग्रेटर देन 5000, वो तभी होंगे, हमें चाहिए ग्रेटर देन 5000. ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट प्लेस पे, थाउजेंड प्लेस पे या तो 5 आ जाए या तो 7 आ जाए. करेक्ट. अगर 5 आ गया तो 1, 2, 3, 4, वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज हियर, 3 पॉसिबिलिटीज हियर एंड 2 पॉसिबिलिटीज हियर, विच इज 24. और सेम थिंग विल बी फॉर 7, 24, यानी कि टोटल 48 नंबर्स बनेंगे. करेक्ट है, विच आर ग्रेटर देन 5000. नाउ वी हैव टू फाइंड numbers which are not only greater than 5000 but they are divisible by 5. So हम कह रहे हैं greater than 5000 and divisible by 5. 5 से divisible कब होता है नंबर? जब उसके लास्ट प्लेस पे 0 या 5 आ जाए.
सिंस डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, यहाँ पर 5000 से बड़े नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है सिर्फ एक सेट में ही बनेंगे। 5 यहाँ पर फिक्स होगा और 0 यहाँ पर। 5 नहीं आ सकता यहाँ पर क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। सो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं और यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल 6 ऐसे नंबर्स बनेंगे इनसे 0 1 3 5 7 से विच आर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5। 7 के लिए यहाँ पर 7 आए और यहाँ पर 0 आए, तो अगेन यू हैव 3 into 2, 6 पॉसिबिलिटीज। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पर 7 आए और लास्ट में 5 आ जाए। भैया डिविजिबल बाय 5 तभी होता है जब यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आ जाए। सो टोटल नंबर्स पॉसिबल आर 18, करेक्ट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ numbers greater than 5000 but divisible by 5, they are favorable 18 sorry upon total 848। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 3/8 विल बी द आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट था ये। व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट? when digits are repeated। अब अगर डिजिट्स रिपीट होते हैं तो बेटा जी हर जगह पर हर डिजिट आ सकता है, तो हमें ग्रेटर देन 5000 नंबर्स चाहिए पहले तो। 4 5000 से बड़े नंबर तब होंगे जब यहाँ पर 5 आए, करेक्ट। डिजिट्स रिपीट होते हैं तो यहाँ भी 5 पॉसिबिलिटीज, यहाँ भी 5 पॉसिबिलिटीज, यहाँ भी 5 पॉसिबिलिटीज। टोटल 125 नंबर्स वो होंगे जो 5 से बड़े होंगे, 5000 से बड़े होंगे, है ना। और अगर 7 यहाँ पर फिक्स कर दें तो भी यहाँ पर 5 डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स आ सकते हैं और यहाँ पर भी 5 डिजिट्स। टोटल 125, यानी कि टोटल 250 डिजिट्स या नंबर्स पॉसिबल हैं। बट एक चीज़ रह गई, दिस इंक्लूड्स, it includes 5000 also। भैया डिजिट्स रिपीट है, 5000 will be the first number, 5001 will be the second number, 5003। सो यानी कि अपने को इसमें से एक डिजिट, एक नंबर कम कर देना है। टोटल नंबर्स हो गए अपने पास 249। नाउ व्हाट अबाउट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5? ये पता करें तो सेम थिंग, 5 से स्टार्ट हो रहा है, एंड में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, है ना भैया। डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे भी 5 पॉसिबिलिटीज, यानी कि 25। उसमें से एक 5000 भी इसमें काउंट हो गया, उसको हटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटर देन 5000, करेक्ट। और यहाँ हो गए 25। सो टोटल नंबर्स आ गए 49। एंड व्हाट अबाउट 7 से स्टार्ट होने वाले, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। 7000 पहला नंबर होगा और लास्ट नंबर 0 पे जो खत्म हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव 25 पॉसिबिलिटीज हियर एंड 7 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे एंड होने वाले नंबर्स, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 चाहिए। ये भी 25 हो गए। टोटल नंबर्स यहाँ पे आ गए 50। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5 फेवरेबल हो गया अपने पास। टोटल आ गया यहाँ पे फेवरेबल के लिए 49 plus 50 which means 99. So it is 99 upon 249 is the answer, which is 33 upon 83. Okay. So students please remember, वो 5000 जो काउंट हो रहा है ना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसका हमें इस कंडीशन में स्पेशल ध्यान रखना है। Now let us talk about exercise 16.2. Question number 5. It has been said that 3 coins are tossed. जब 3 coin toss होते हैं
सबसे पहला काम अपने को सैंपल स्पेस लिखना होता है. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस, सो आई एम राइटिंग दैट सैंपल स्पेस. करेक्ट. H H T H T H T H H and T T T. I think we have to write T T H T H T and H T T. Correct. So there are 8 possibilities. तीनों हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं इन केसेस में, 1 हेड आ रहा है यहाँ और 1 टेल आ, तीनों टेल आ रहे हैं यहाँ, यानी कि 0 हेड्स. If we are asked to write certain events which are mutually exclusive but not exhaustive, let us take the fourth part. We have to write the events, 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive. Now what does mutually exclusive means? उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है टोटल सैंपल स्पेस बन जाए. हमें ऐसा नहीं लिखना है. अगर हम कहते हैं इसके लिए, मान लो हम कहते हैं 1 हेड अपीयर्स, ये तो एक है, ए इवेंट हो गया, ठीक है, और बी इवेंट हो गया 2 हेड अपीयर्स. ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं. सो 1 हेड अपीयर एंड 2 हेड अपीयर. 1 हेड अपीयर में 1 2 3 पॉसिबिलिटीज हैं. 2 हेड अपीयर में 1 2 3 पॉसिबिलिटीज है. देयर इज नथिंग कॉमन बट दे आर ओनली कवरिंग 6 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ 8. So they are mutually exclusive but they are not exhaustive. So students, in this way we can solve these kind of questions. So please solve them. Correct. Now talking about question 6, there are certain things given to us. A is getting an even number on the first die. 2 dice are thrown. So A का मतलब हो गया even on the first, even on first dice. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इवन ऑन द फर्स्ट डाइस का मतलब पहले डाइस पे इवन है, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है भैया. करेक्ट है. मतलब अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आया तो दूसरे पे यहां पर देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज. 2 1 2 2 2 3 T4 T5 T6. ठीक है ना, पॉसिबिलिटी. ठीक है, विच इज 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Similarly 4 1 4 2 4 3 and 6 1 6 2. So total we have 18 possibilities. Correct. Now what is B? Odd number on the first die. Same thing will be there, odd on first die, यानी कि 1 3 5. यहाँ पर भी 2 4 6 आएगा. odd on first का मतलब हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. करेक्ट. ऐसे 3 के लिए आ जाएगा, ऐसे 5 के लिए भी आ जाएगा. करेक्ट. C is sum of the numbers on the die less than equal to 5. C is sum less than equal to 5. और जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो सम या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5 आता है, ऐसे 12 तक जाता है. 2 का सम कितनी बार आता है? 1 बार. 3 का सम कितनी बार आता है? 2 बार. 4 का सम 3 times. 5 का सम 4 times. You can also write them. It is 1 1 1 2 2 1. 3 का टोटल हो गया. 4 का टोटल कैसे कैसे आएगा? 2 2 3 1 1 3. और 4 का टोटल कैसे कैसे? 5 का टोटल 2 3 3 2 1 4 and 4 1. Correct. So we have got all the possibilities. जो भी चीज हमसे कही जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. So students, I hope I have tried to solve all your problems till now. Please send me further problems so that we can discuss them in our next class. In the meantime, stay home, stay safe and enjoy probability. Thank you.